کہ 3 شخص ایسے ہیں جن پر جنت حرام کی ہے اللہ نے. 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا. میں یہاں یہ کہہ دوں کہ جنت جس پر حرام ہوگی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. شراب پینے والا، اس پر جنت حرام ہے. دوسرا عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شراب ہمیں دکھتا ہے معاشرے میں تو ماں باپ کا نافرمان بھی جو ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور علماء سے یہ بات ضرور پوچھ تاچھ ہوگی اس کی کہ جو میں نے یا میرے رسول اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، آپ تک پہنچایا ہے، کیا آپ نے وہ لوگوں تک صحیح اندازے سے اس کی پیش رفت کی ہے؟ ناظرین آداب، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مبلغ دین مولانا فردوس رضا قادری صاحب کو، جن کا تعلق کولگام اننت ناگ سے ہے. سب سے پہلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا، اور شکریہ بھی کرتے ہیں. تبلیغ دین کے سلسلے میں انہوں نے جو مشن شروع کیا ہے، ہم اس کی سراہنا کرتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان، آج کا جو سکول بچہ، آج کے ہمارے یہ بیٹے جو ڈرگس کے شکار ہوئے ہیں، جو ڈرگس کی لت پڑی ہے ان کو، جو ڈرگس کا یہ نشہ کرتے ہیں. کچھ لوگ چرس کا نشہ کرتے ہیں، کچھ ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں، کچھ گانجا کا نشہ کرتے ہیں، کچھ نارکوٹک ڈرگس کا استعمال کر کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. آج ہم مولانا سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سماج میں ایک تو سماج کی ذمہ داری کیا ہے ان ڈرگس پر روک لگانے کی، اور ان پر روک کس طرح سے لگائی جا سکتی ہے ان ڈرگس پر، اور نوجوانوں کی اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم مولانا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈرگس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دین کی روشنی میں؟ مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنی اس چینل پر بلانے کی سعادت حاصل کی اور لوگوں تک دین اسلام کی جانکاری پہنچے. یہ سب سے بڑا عمل ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے دنیا میں سب سے بڑی عمل کون سی ہے کہ جس سے میں کر کے اپنی آخرت کو سنواروں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. مگر اس صحابی نے یہی اپنی بات ختم نہ کی، کہا آقا کیا کوئی عمل اس سے بھی بڑی ہو؟ تو مجھے اس کی بھی جانکاری چاہیے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی، اس سے بڑھ کر ایک اور عمل ہے، اس کا نام دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. تو یہ جو میڈیا والے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اچھی اچھی اسلام کی جانکاری پہنچے، کہ لوگ اس جانکاری کو سن کر یا دیکھ کر اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے نقش قدم پر چلائیں. تو بہرحال مجھے جو سوال ہوا ہے وہ ڈرگس کے بارے میں ہے. تو میں تحریک صوت الاولیاء کا ادنا خادم آپ کے سامنے ہوں. ڈرگس کے بارے میں جو بھی سوالات مجھے پوچھے گئے، میں ان کا جواب بس کچھ منٹوں میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو میری بات آپ سے یہ رہے گی کہ ڈرگس کے بارے میں قرآن کے کیا فرامین ہیں، حضور کے کیا فرامین ہیں. تو قرآن ڈائریکٹ ہمیں سب اس بارے میں یہی تو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، یہ شیطانی کام ہے، ان سے ہمیں بچنا ضرور ہے. اگر ان سے بچتے رہو گے تو آپ فلاح و کامیابی پاؤ گے. تو نشے قرآن سے ثابت ہوا کہ شراب کو، نشے کو
اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے ہر نشہ لانے والی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کام قرآن اور حدیث سے حرام ہو ہمیں اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جی مولانا، تو دین کی روشنی میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ارشادات قرآن کے مطابق، فرمودات الہی کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک۔ تو اس کے بعد ہم مولانا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پر روک کس طرح سے ممکن ہے؟ اس نشہ آور چیز کو سماج میں جو جگہ ملی ہے، نوجوان جو اس کے عادی بنے ہیں، کس طرح کی روک، کس طرح سے اس پر روک لگائی جا سکتی ہے، کس طرح سے ممکن ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے بھی ضروری کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اگر یہ برائی والی عمل ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو روک دیں، یا ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانان نسل کو یہ سمجھانے میں لگ جائیں کہ یہ نشہ آپ کو جہنم ہی میں لے جانے والی عمل ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں، تو آیت مبارکہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے اللہ فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے وہ میرے نبی کی زندگی مبارکہ ہے۔ یعنی فی رسول اللہ کہا ہے اللہ نے، فی القرآن بل فی الحدیث نہیں کہا، یعنی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے اسی پہ چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے چاہے کہ اس نشہ آور چیز کو اپنے آپ سے دور رکھے تو اسے چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارے، اور دل میں اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کا عشق رکھ کر اپنے اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، تاکہ اس برے عمل سے آپ بچ جاؤ گے۔ یہی ایک واحد حل ہے آج کے دور میں کہ انسان دین پڑھے اور دین کے ساتھ تعلق رکھے اور دین داروں کے ساتھ تعلق رکھے کہ وہ ان سارے برے عملوں سے بچتا رہے گا۔ جناب، اب ہم مولانا سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سماج میں وہ کیا ذمہ داریاں ہیں، سماج کی وہ کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ان ڈرگس میں جو نوجوان ملوث ہے، جو جوجھ رہے ہیں ان ڈرگس کے بدکاریوں اور بے ہوشی کی حالت میں جو جوجھ رہے ہیں، سماج کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر کہ وہ ڈرگس کو کس طرح سے مقابلہ کریں، ان نوجوانوں کو کس طرح سے بچائیں؟ ماشاءاللہ، دیکھنے والے ناظرین میری اس بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ ہمیشہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں، مگر سب سے پہلے اگر ایک لڑکے کا کردار اچھا یا ایک لڑکی کا کردار اچھا بنانا ہو وہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہیں والدین وہ تعلیم فراہم کریں جو تعلیم دین کی تعلیم ہو، کہ وہ انہیں سمجھائیں جو بیٹا آپ کرتے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو والدین کی ہے، اور جتنا ایک بیٹے یا بیٹی کو والدین سمجھائیں اس سے زیادہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آتی ہے استادوں پہ بات، اور استادوں کے بعد یہ آتی ہے دین کے رہنما اور علماء پر بات۔ لیکن سماج میں اگر ہم چاہیں تو ہمیں اس حدیث کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مبلغ دین بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو کر مبلغ دین بنے، ہر کوئی ہم میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی مبلغ دین ہے، داعی اسلام ہے، کیونکہ اس امت کو جو شرف سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے وہ ایک ہی بات ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہیں، ہمیں صرف علماء ذمہ دار نہیں، کشمیر ہو یا کہیں اور جگہ ہو، معاشرے میں جہاں یہ برائی پھیلی ہو، ایک ایک انسان ذمہ دار ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے۔ یعنی اس برے عمل کو اگر نہ روکا گیا تو اللہ ہم سب سے اس کا
इंतकाम लेगा क़यामत के दिन, क्योंकि मेरे नबी की उम्मत ऐसी अफजल उम्मत है, नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये सारा काम जो नेकियों की दावत और बुराइयों से पीछे रहने की बात आ गई, तो ये हम सब पर आयद होती है। यानी हमें चाहिए कि जहां भी कोई गलती देखे, मैं यहाँ एक हदीस पाक कोट करना मुनासिब समझता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व इन रा मिनकुम मुनकरन, अगर आप में से कोई गलत काम कहीं देखे, नाजरीन इस बात को अच्छे से समाअत फरमाएं, अगर कोई कहीं गलत काम देखें, फल युगय्यर बियदिही, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उस गलती को रोके। व इल्लम यस्तती, अगर वो अपने हाथ से रोकने से कासिर रह गया, फबिलिसानी, तो वो जुबान से ये तो कह सकता है कि आप शराब मत पियो, आप ड्रग्स मत करो, आप इन बुरे अमाल में मत रहा करो। तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 ही बयान फरमाए हैं अलामत ईमान। तो तीसरा कहा है, अगर ना हाथ से कह सके ना जुबान से कह सके, फबि क़ल्बी, तो लास्ट वाला जो ईमानी अलामत है, दिल से उस गुनाह की नफरत रखो। कम से कम समाज में अगर इंसान किसी को रोक ना सकता हो, तो ये तो इंसान कर सकता है कि अपने दिल में उस गुनाह की नफरत रख सकता है। मेरे आका ने फरमाया, ज़ालिका अदफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर वाला हिस्सा है कि दिल में उस गुनाह की नफरत रखी जाए। अब हजरत ने पूछा कि हम समाज में कैसे इस बड़े गुनाह का कला कमा कर सकते हैं, या हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो जहां पर भी आप कोई गलती देखो, कोई गुनाह देखो, इतना तो बन जाओ, दाई इस्लाम बन जाओ कि उस गुनाह को या उस गुनहगार को समझाने में लग जाओ। एक बार ना समझे, 2 बार ना समझे, 3 बार ना समझे, आप अपनी दावत को बंद मत करो। जब तक उससे वो गुनाह ना छुड़वाओ, तब तक आप पीछे मत हटो। यही समाज की जिम्मेदारी है। मौलाना, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ड्रग्स समाज में बेच रहे हैं, बेशक, जो इसकी पेडलिंग कर रहे हैं जी, दीन की नज़र में या आपकी नज़र में उनकी हैसियत क्या है? अगर वो करोड़ों भी कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, मगर ड्रग्स का कारोबार करके कमाते हैं, तो दीन क्या कहता है इनके बारे में? बेशक, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। अगर अब इस ड्रग्स को बेचने वाला या खरीदने वाला या पीने वाला, तो मुझे बेहतर रहेगा, इन्होंने पूछा था कि आपकी हैसियत से मैं कौन हूँ, हम तो सिर्फ अल्लाह और रसूल के फरामीन को आगे पहुँचाते हैं। ये सौतुल अवलिया का पैगाम भी है, अल्लाह और रसूल का पैगाम भी है, और मुझ नाचिज़ को आज मौका मिला है कि मैं इस बात को आपके सामने रखूं। तो जो सवाल इन्होंने कहा कि बेचने वाला, खरीदने वाला, पीने वाला, और ये इससे पैसे कमाए, तो हमें बताइए कि ये करोड़ों भी कमाए, क्या इन्हें ये करोड़ों रुपए किसी काम आ सकते हैं या नहीं? मैं खुद की बात क्या करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत फरमाई। पहले मैं आपसे यह भी कह दूं कि जिसे लानत पड़े अल्लाह की, वो रहमत से महरूम होता है, उसे अल्लाह की रहमत कभी नहीं मिल सकती है। तो 10 आदमी वो हैं, आप गिन के रख दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। पहला आदमी जो अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, शराब बनाने वाले मुलाजिम पर अल्लाह की लानत होती है। यानी पहला वही इंसान जो शराब बनाए, जो ये ड्रग्स बनाए, जो इस कारोबार को आगे चलाए, ये मुलाजिम लोग ही इस लानत के शिकार होते हैं। हुजूर ने फरमाया, अपने वास्ते शराब नचोड़ कर तैयार करना, इस शख्स पर भी अल्लाह की लानत होती है। 2, तीसरा मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वाले पर भी अल्लाह की लानत होती है, यानी इनके मुलाजिमों पर भी, अपने लिए निचोड़ कर पीने वाले पर भी, और जिसे बेचा जाए फिर वो पिए, उस पीने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। शराब को इधर से उधर ले जाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। यानी अगर कोई ऐसा कहे कि मैं पीता नहीं हूं, मैंने बनाया नहीं है, मैं बस इसका कारोबार कर रहा हूं, तो अल्लाह ने उस पर भी लानत फरमाई है। यानी रसूलुल्लाह की हदीस ये आप समाअत फरमाएं, तो मेरे आका ने फरमाया, शराब उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। अब तो पीने वाले की उधर इधर ले जाने वाले पर, अगर किसी ने उठाई भी ये बोतल, तो उस पर भी अल्लाह की लानत है। इतना ही नहीं,
शराब पिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। ये शायद छठी किस्म है। कहा छठवां किस्म जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने इन लोगों का बयान फरमाया, कहा छठा जो है ये पिलाने वाला। एक तो पीने वाला जो खुद पीता हो, अगर कोई किसी और को पिलाए तो अल्लाह उस पर भी लानत फरमाता है। सातवां है शराब बेचने वाला, जो इन्होंने मुझे सवाल किया था कि इससे अगर कोई पैसे कमाए या कुछ और, तो ये समझो उस पर भी अल्लाह की लानत है। फिर वो पैसे या रुपये किस काम के। आठवां मेरे आका ने फरमाया शराब के पैसे और उसकी कीमत खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। यानी शराब से जो भी कमाया जाए, चाहे वो अपने औलादों को दे, अपने घर वालों को दे, अपनी बीवी को दे, तो उस पर भी अल्लाह की लानत है। नौवां शराब खरीदने वाले पर भी अल्लाह की लानत। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बचाए हमें इस बुरे अमल से। नौवे किस्म वाले लोग वो हैं जो शराब को खरीदते हैं, और जिस वास्ते शराब खरीदी जाए उस पर भी अल्लाह की लानत होती है। अबू दाऊद इब्न माजा मिशकात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस पाक है कि 10 अफरादों को अल्लाह ने लानत फरमाई है। और मैं आपसे ये बात भी यहाँ हजरत करूँ कि मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर जन्नत हराम की है अल्लाह ने। 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम किया। मैं यहाँ ये कह दूं कि जन्नत जिस पर हराम होगी वह कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो पहला उसमें यही है मुदमिनुल खमर, दवाम से हमेशगी से शराब पीने वाला, इस पर जन्नत हराम है। दूसरा आकुल वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान। कोई ये ना समझे कि शराब हमें दिखता है माशरे में, तो माँ बाप का नाफरमान भी जो है उस पर भी अल्लाह की लानत। और तीसरा मेरे नबी ने फरमाया दुयूस, यानी वो इंसान बेगैरत जिसके घर में गुनाह होते हों और ये उनको रोकने के लिए तैयार ना होता हो, या इसमें इतनी गैरत ना आती हो कि मैं इस गुनाह को रोकूं, कहा इस पर भी जन्नत हराम है। और एक छोटी सी हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया एक शख्स के सामने 3 चीजें रखी गई, ये आप भी मुलाहिजा फरमाइए। शराब रखा गया, जिना रखा गया और कत्ल रखा गया। उसे कहा गया कि आप 3 इन बड़े गुनाहों या कबीरा गुनाहों में क्या पसंद करोगे? जिना करना पसंद करोगे, आपको मिल जाएगा। कत्ल करना पसंद करोगे, आपको मिल जाएगा। शराब पीना पसंद करोगे, आपको मिल जाएगा। तो इसने कहा कि मुझे बचने के लिए अगर मैं शराब पीऊं तो कोई बात नहीं, जिना और कत्ल नहीं करूंगा मैं। लेकिन इसको पता नहीं थी, मेरे नबी ने फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, अल खमरु उम्मुल खबाइस, ये सारी बुराइयों की जड़ और मां है। मेरे अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने शराब को पसंद किया, जब शराब पिया इसने तो इसके सारे ठिकाने खत्म हो गए, इसका दिमाग खत्म हो गया। इसने हजरत दोनों गुनाह कर दिए। एक तो शराब पीकर इसको पता नहीं थी मैं क्या कर रहा हूं, तो बदकारी में मुब्तला हो गया, जिना में मुब्तला हो गया, तो जिना करने के बाद उसने उसका कत्ल कर दिया, यानी 3 बड़े गुनाहों में यह मुब्तला हो गया। तो हमें चाहिए इन अहादीस और आयत पाकों को मद्देनजर रखते हुए उलमा को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए और माशरे में रहने वाले लोगों को भी चाहिए कि इस बुरे अमल और बड़ी अमल को इंसान ख़त्म करे, गला कमा करे इसका। तो इसी से उस इंसान की फलाह व बहबूदी या कामयाबी है। जनाब मौलाना, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि उलमा की जिम्मेदारियाँ क्या हैं ड्रग्स को रोकने में? क्या है उलमा की जिम्मेदारियाँ, वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? थोड़ा ज़रा सा इसकी वजह। माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि उलमा तो कौम के रहनुमा होते हैं, उलमा तो कौम के ज़िम्मेदार होते हैं। और उलमा से ये बात ज़रूर पूछताछ होगी इसकी कि जो मैंने या मेरे रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का फरमान है, आप तक पहुँचाया है, क्या आपने वो लोगों तक सही अंदाजे से उसकी पेशरफ्त की है या नहीं? तो उलमा ज़रूर ज़िम्मेदार होंगे इस बात के। तो मैं खुद तो आलिम नहीं हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और अदना सा तहरीक सौतुल औलिया का खादिम हूँ। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे भी चाहिए कि मैं हमेशा जहाँ पे भी हमारी कोई दीनी कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ पे इंसान को या आलिम लोगों को चाहिए कि वो इन जैसी बुरी खराफातों को समाज से दूर करें। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये हम किसी को मिन्नत और एहसान नहीं रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हर कौम में 12-12 पैगंबर वाज़ो तबलीग करते थे। हुजूर के बाद ये सारी जो जिम्मेदारी है, फराइज़ जो हैं, ये हुजूर के उलमा पर रखी गई है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद,
अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उम्मत के उलमा अंबियाओं के वारिस हैं। तो मुझे कहने दीजिए ये बात कि हर किसी आलिम को चाहिए कि वो अपने खिताब के दौरान, जुमा का खिताब हो या कोई और प्रोग्राम हो दीनी, तो उसमें या दीनी के बगैर भी वो कोशिश करें कि घर घर जाकर या चौकों में जाकर या बाजारों में जाकर इस नशे वाली चीज को रोकने में बिल्कुल हमा तहन और हमा जहद कोशिश करें। और उलमा जो आज के हैं, मुझे तो लगता है, मैं अहलुस सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रख रहा हूं, हमारे जो उलमा जिन पर मेरी नजर है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इतना नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने हद पूरी की, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहलुस सुन्ना वल जमात इस काम में लगे हुए हैं। बहुत सारी तहरीकें हजरत यहाँ काम भी कर रही है इस बारे में कि शराब के अड़ों को बंद किया जाए, शराब की दुकानों को बंद किया जाए और ये शराब जैसी बुरी अमल ये इस कश्मीर में ना रहे। तो बहुत सारे उलमा इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये राय रहेगी कि अगर जिन पर मेरी नज़र है वो कर रहे हैं और जो मेरी नज़र से ओझल हैं, मैं उन उलमाओं तक भी इस चैनल की वसादत से ये बात पहुंचाने में मुझे लगता है कि अल्लाह इसका जज़ाए खैर हमें अता करेगा कि ये बात आप सुन लीजिए। उलमा से मेरी गुजारिश है कि आप भी नौजवानाने नस्ल में वो बातें रखें जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, आपका आखिरी पैगाम क्या होगा नौजवानों के लिए? बस ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने शायद इस प्रोग्राम में पहले से ही ये बात कही, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को मेरी बात अच्छी लग रही है तो बस ये मेरी बात, आखिर पैगाम मेरा यही है। और मेरा क्या है? ये मेरे अल्लाह और मेरे रसूलुल्लाह का है कि इस बुरी अमल से, इस बुरे अमल से और इन नशावर चीज़ों से मेरे नौजवानों दूर रहो। नौजवान नस्ल कौम के मीमार होते हैं, नौजवान नस्ल कौम के ज़िम्मेदार होते हैं और हमेशा हर वक्त नौजवानों ने इनकलाब लाया है, नौजवान ही रेवोल्यूशन के पीछे रहे हैं। और हमारे नौजवान इन बुरे अमलों में क्यों रहे? इन नौजवानों को मेरी गुजारिश है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो। 5 चीज़ों से पहले, उसमें पहली चीज़ ये बयान फरमाई है कि ज़िंदगी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, यानी पहले इंसान या ज़िंदगी को गनीमत जानो मरने से पहले। दूसरा कहा गया है जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। फिर तीसरा कहा गया है सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। फिर चौथे को कहा गया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि फुर्सत को गनीमत जानो फिर मशगूल रहने के बाद। ये इंसान इतना फुर्सत वाला फिर नहीं बन जाता है। तो मेरी नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि आप भी अपने आप को रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के साथ अपने आप को लगाए, ताल्लुक़ जोड़े मेरे नबी के साथ। आप इन बुरे खराफातों से, बुरे रस्मों से और बुरे इन नशीली आवर चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उनकी हिफाजत हम पर रहेगी और वही इताअत और फर्मा बरदारी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये थे मुबल्लिग दीन मौलाना फिरदौस रज़ा कादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ अनंतनाग से है, जिन्होंने इस्लाम का नुक्ता नज़र वाज़ह किया है, जिन्होंने इस्लाम के नुक्ता नज़र के मुताबिक वजाहत की है कि दीन इस्लाम में नशा आवर चीज़ें बेचना, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना हराम है, चाहे इससे कितनी दौलत कमाई जाए वो भी हराम है। और इस पर उलमा की क्या जिम्मेदारी है नशा को रोक लगाने में, और समाज की क्या जिम्मेदारी है नशा आवर चीज़ें बेचने वालों पर रोक लगाना और नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने वालों पर किस तरह से रोक लगाना है। मौलाना ने इन चीज़ों की वजाहत की है। तो मौलाना ने जो बेबाक तरीके से जो जवाब दिए हैं, मौलाना की सराहना करते हैं और मौलाना से इजाज़त लेते हैं।